السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹائیگر ریلیف فورس اور ریلیف فنڈ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں کامیاب ہونے والا ملک چین ہے۔ یہاں بھی چین والے حالات ہوتے تو میں تمام شہر بند کر دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ شدید غربت میں رہتے ہیں۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے اور ان غریبوں کا خیال نہ کرتے تو کوئی لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا۔ اگر ہم غریب لوگوں کو گھروں میں کھانا نہیں پہنچا سکتے تو لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آج بھی وزیر اعظم نے جو بات کی وہ لاک ڈاؤن، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو کرفیو ہے اس میں دوبارہ ایک دفعہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ تمام صوبوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ سندھ بہت آگے نکل گیا، مگر جو بھی کام سندھ نے کیا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پنجاب نے بھی کیا ہے۔ اگر سندھ نے پہلے سکولز بند کیے، بعد میں پنجاب نے کیے، سندھ نے لاک ڈاؤن کیا، بعد میں پنجاب نے کیا، سندھ نے اگر لمٹ لگائی ٹائم کی تو پھر بعد میں پنجاب نے بھی وہی کیا، مگر وزیر اعظم پھر بھی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ایک فنڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ کورونا ریلیف فنڈ کا اکاؤنٹ کل سے آپریشنل ہو جائے گا، امداد جمع کرائی جا سکے گی۔ ریلیف فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی مکمل تفصیلات قوم کو بتائی جائیں گی، وزیر اعظم نے کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ان لوگوں کو جو اس وقت ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو بھارت میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، بڑا سخت لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنے پر مودی کو قوم سے معافی مانگنا پڑی، اور ساتھ ہی اس وجہ سے معافی مانگنا پڑی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر سوچے سمجھے نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ نریندر مودی نے اصل میں کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو سنائیں گے، وزیر اعظم نے کیا کہا ذرا دیکھیں۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ آج وہاں حالات دیکھ لیں، آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے، اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، معافی اس بات پہ مانگی ہے نریندر مودی نے کہ بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ حالانکہ بھارت میں نریندر مودی نے لاک ڈاؤن میں مزید سختی کی ہے، مختلف ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی بارڈرز کو سیل کریں، لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے دیں۔ اور کل جس معافی کا ذکر کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے ریڈیو پر اپنی قوم سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے معافی ضرور مانگی، مگر ساتھ میں یہ کہا کہ اس کے علاوہ 1 ارب 30 کروڑ عوام کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سبھی دیش واسیوں سے क्षमा مانگتا ہوں، اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے ضرور क्षमा کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے نرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ خاص کر کے میرے غریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو ضرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے، ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا۔ ان سے بھی میں وشیش روپ سے क्षमा مانگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہو۔ میں آپ کی دقتیں سمجھتا ہوں، آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں، لیکن بھارت جیسے 130 کروڑ کی آبادی والے دیش کو کورونا کے خلاف لڑائی کے لیے ایک قدم اٹھائے بنا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کورونا کے خلاف لڑائی جیون اور مرتیو کے بیچ کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے، اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے۔ کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے، لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے۔ آپ کو، آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اسویدھا ہوئی ہے، کٹھنائی ہوئی ہے، اس کے لیے क्षमा مانگتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ نریندر مودی نے اس بات کی معافی مانگی کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا نریندر مودی نے، معافی مانگی کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 ارب 30 کروڑ عوام کی جو حفاظت ہے اس کے لیے دنیا بھی اسی قسم کے اقدامات کر رہی ہے جیسے اقدامات کیے گئے، اور پھر اقدامات کو مزید بھارت میں سخت کر دیا گیا، ریاستوں کی طرف سے سختی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل کرفیو کے نام پر لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ
लॉकडाउन में इस वक्त वाज़ेह है कि गरीब आदमी की मुश्किलात तो बढ़ी हैं, मगर मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है, तमाम ज़रूरी सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, खाने पीने का सामान मिल रहा है, तमाम ज़रूरी शोबों से वाबस्ता अफराद काम पर भी जा रहे हैं। तो ये इस वक्त कर्फ्यू नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म लॉकडाउन की कर्फ्यू के नाम पर मुखालफत करते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो इस बात की हामी और कह रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसका फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि लॉकडाउन में बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी पासदारी की जाए। पंजाब में जब रायविंड का इज्तिमा हुआ उसकी पासदारी नहीं कराई गई, तो अब सिंध में भी पंजाब भर में इस वक्त जो केसेस हैं वो रायविंड के इज्तिमा के बाद और वहाँ से जो जमातें निकली उस वजह से नज़र आ रहे हैं। इसलिए मुसलसल ये तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म जब कन्फ्यूज़ करते हैं लॉकडाउन और कर्फ्यू को तो लोगों में भी गैर संजीदगी आती है। इसलिए पंजाब में जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं सिंध के मुकाबले में। इस वक्त सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपको लग रहा है कि अब लॉकडाउन के नतीजे में कहिए या इस वक्त जो दुनिया में नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं 10-10 हज़ार केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं, अमवात 500-500 और हज़ार के लगभग हो रही हैं। पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि पीक कर गया है, फ्लैटिन हो गया है कर्व, 100-150 नए केसेस आ रहे हैं, अमवात की तादाद में भी उतना इजाफा नहीं हो रहा है। नहीं, मैं अगर एक लफ्ज में जवाब सुनेंगे तो नहीं। देखें जी, हमने इसको स्प्रेड तो इसका कम किया है, ये लॉकडाउन का यही फायदा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्टिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उनके लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब उसके उधर भी बड़ी सिलेक्टिव टेस्टिंग होती है, लेकिन उनके पास नंबर्स काफ़ी हैं, टेस्ट करने की गुंजाइश की कैपेसिटी बहुत है। हमारे यहाँ फॉर इंस्टेंस सिंध में हम अभी तक 6000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं और 6000 में रफली 10% आप कह लें पॉजिटिव आ रहे हैं लोग। यही टेस्ट अगर हम ज़्यादा कर सकें तो शायद इससे ज़्यादा नंबर्स हों, बल्कि यकीनन ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो आई डोंट थिंक फ्लैटन हुआ है, स्प्रेड ज़रूर रुका है। टेस्ट जो है जैसे होते जाएंगे और ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। शाह साहब, फैसल ईदी का एक बयान सामने आया, पंजाब के हवाले से उन्होंने बयान दिया, सिंध में भी उन्होंने कहा अमवात हुई हैं। हमारे साथ फैसल ईदी भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका बयान किस कॉन्टेक्स्ट में था। मगर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि ये बात तो तय है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आप, बलूचिस्तान सभी ये कह रहे हैं कि जी टेस्ट कम हुए, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ओरिजिनल कितने लोग हैं जो कि इससे मुतासिर हुए कोरोना से। मगर क्या ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि टेस्ट कम हुए हैं इसलिए ये नहीं पता कि कितने लोग मुतासिर हुए, और फिर पाकिस्तान में जितनी अमवात होती हैं वो सारी इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, सबका बाद में अस्पताल आकर नहीं पता चलता कि किस वजह से मौत हुई है, इसलिए अमवात की तादाद भी ज्यादा हो सकती है जितनी रिपोर्ट हुई है? मैं ये नहीं कहूंगा, इसलिए कि जो चीज पता नहीं है कि डेथ्स जो हुई हैं वो कोरोना से हुई हैं, अगर उसमें कोई पक्की बात या कोई पक्की इतला नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जी ये डेथ्स हुई हैं और हमें पता ही नहीं चला है। लेकिन अल्लाह ताला सबको बचाए, ऐसा भी नहीं है कि डेथ्स नहीं हुई हैं। हमें पिछले दिनों में तो आप देख रहे हैं रोज हमें एक दो डेथ्स का पता चल रहा है। कल 2 लोग 2 या 3 की कल डेथ हुई थी, आज भी अभी तक जहां तक मुझे पता है 1 डेथ हो चुकी है। कुछ लोग वेंटिलेटर्स पे हैं और ये थोड़े से नंबर्स है ना जो हमारे टोटल, जैसे मैंने कहा 500 से कुछ ऊपर पॉजिटिव्स हैं, तो वही जो दुनिया भर में डेथ रेट है वही चल रहा है, कोई इतना कम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हमारे इससे निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्टेबल होने की बात है कि डेथ्स नहीं हो रही हैं। वो दुरुस्त है, मगर जो दुनिया भर का रेट है वो जो लोअर साइड पर है अभी भी, और ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो ज़्यादा इस वक्त भी नहीं है, जो डेथ इतनी ज़्यादा नहीं सामने आई है। मगर साथ में ये भी बताइएगा शाह साहब कि अब जो आपने लॉकडाउन अनाउंस किया 4 अप्रैल तक का था, उसमें अब चंद दिन रह गए हैं, और लॉकडाउन ज़ाहिर इसलिए अनाउंस किया गया कि हुकूमतों को मौका मिले, टाइम मिले कि वो तैयारी कर सकें। अब जबकि डेडलाइन करीब आ रही है, तो आप ये समझते हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं, लोकल डिमांड को पूरी करने वाली हैं, उन सबको ही खोला जाए आहिस्ता आहिस्ता, एक पूरा SOP बना के, और उनको बताया जाए कि जी इस चीज़ पर आपने अमल दरामद करना है, जो चीज़ें रेगुलेट हो सकती हैं उनको खोलना शुरू किया जाए और पूरे SOPs के साथ, और फिर देखा भी जाए कि वो उसकी पासदारी कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, इस पे
गौर हो रहा है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, तरीक़ेकार भी देखा जा रहा है। शाहजेब, अगर मैं एक बात सिर्फ आपको बता दूं, हम बहुत लेट हो गए अनफॉर्चुनेटली। यही लॉकडाउन अगर हम 15 मार्च को, फॉर इंस्टेंस मैं एक डेट ले लेता हूँ ऐसे ही, 15 मार्च को कर देते और 15 मार्च को इफेक्टिव लॉकडाउन, जैसे आज इफेक्टिव तो नहीं है, मतलब जितना इफेक्टिव अभी है और जो पिछले एक हफ्ते हुआ है, हम 15 मार्च को करते तो जो स्प्रेड हुआ था, फॉर एग्जांपल इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास वो आ रहे हैं जो तबलीगी इज्तिमा से लोग आए थे उनके, वो अगर उसी वक्त ना ट्रैवल करते अपने अपने घरों को और रोक दिए जाते कहीं जगह पे, तो वो टेस्ट नहीं आते और उन्होंने कहीं और को इन्फेक्ट किया होगा। तो अगर 15 मार्च को हम वो वाला लॉकडाउन कर देते जो आज जो एक हफ्ते पहले से शुरू हुआ था, तो आज हम उस लॉकडाउन को खोलने की बातें कर रहे होते। और हम जैसे जैसे हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि पहले स्कूल बंद किए, फिर रेस्टोरेंट्स बंद किए, फिर शॉपिंग सेंटर्स, फिर तफरीही मकामात, फिर दफातर और फिर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की, फिर दफातर बंद किए और इंडस्ट्री जो नॉन फूड रिलेटेड इंडस्ट्री और नॉन हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री और दुकानें वो बंद की। अभी हम उस रिवर्स गियर में होते, मूड में होते कि हम खोल रहे, और आखिर में हमने जो है मसाजिद में भी लोगों की तादाद मुतय्यन की और ये कहा कि जी मस्जिदें खुली रहेंगी और बाजमात नमाज तो होती रहेगी, लेकिन तादाद उलमा के कंसल्टेशन के बाद वो एक तादाद मुतय्यन की। तो इस वक्त हम वो रिवर्स में होते। अब ये 4 या 5 तारीख को होगा तो हम ऑलरेडी काफी स्प्रेड जो हो गया है उसको नहीं रोक सके बिकॉज ऑफ द डिले। लेकिन ये सारी उम्र के लिए तो ना लॉकडाउन हो सकता है या किसी सारी मतलब लंबे अरसे के लिए नहीं हो सकता। हमने फिर इसको रिलैक्स करना शुरू होगा, बट एक मेथोडोलॉजी से होगा, इस तरीके से होगा कि नुकसान कम से कम हो हमारा। अच्छा, ज़ाहिर है टाइमली चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा अच्छा था ये शशोपंज में रही मरकज़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी, तबलीगी इज्तिमा भी हो गया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं पाकिस्तान भर में केसेस आ रहे हैं, हैदराबाद तक में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर इस वक्त आप कम से कम ये होमवर्क हो रहा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंडस्ट्री है या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसे आहिस्ता आहिस्ता आप बाकायदा रेगुलेट करके कि किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है, कितना फासला रखना है, इस तरीके से खोलना शुरू किया जाए। बिल्कुल, मैं सिर्फ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त इंपोर्ट कौन कर रहा है। पूरी दुनिया बंद है, आप एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूरोप करते हैं। यूरोप की जो इस वक्त हालत है हम सबको पता है। आप नॉर्थ अमेरिका करते हैं, उधर जो पोजीशन है, मिडिल ईस्ट में सब फ्लाइट सब कुछ बंद है। तो एक्सपोर्ट्स बिल्कुल, हमने तो ये कहा हुआ है कि जिसकी गुड्स तैयार हैं वो ले जाए और एक्सपोर्ट करे, बट कहीं इंपोर्ट्स कहाँ हो रही हैं? जो इंपोर्ट्स इस वक्त तो मैक्सिमम डिमांड जो लोगों की है वो ये टेस्टिंग किट्स है, वेंटिलेटर्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, आपके ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, उस टाइप की चीज़ों की डिमांड है। बाकी चीज़ों की तो डिमांड इस वक्त इतनी है नहीं जो हमारे यहाँ है। और दूसरा कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है उनको तो हमने कंजर्व करना चाहिए। मतलब मगर ज़ाहिर जो बैरूनी इकॉनमीज़ हैं वो अगर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस वक्त उसके लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि वो जो पैकेजेस भी आ रहे हैं अमेरिका में हो, दूसरे ममालिक में हो, वो कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं कि कम से कम लोगों की कंजम्पशन रहे, लोगों का गुजारा होता रहे। तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनके अगर पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दुनिया नहीं इंपोर्ट कर रही है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखा हुआ है? बिल्कुल, हम बिल्कुल जो है हर एक को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और जहां मुल्क का फायदा है एक्सपोर्ट्स होंगे, ऑब्वियसली हमें उस फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और हम खुद चाहेंगे कि उनको फैसिलिटेट करें हर तरीके से, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। ये सबसे प्राइमरी जो इस लॉकडाउन का या इस सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद यही है ना। तो अगर वो इंश्योर हो सकेगी बात कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं तो बिल्कुल हमें खुलने इतराज के हम तो विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। लेकिन आप खुद बताएं कि मुझे ऐसे केसेस मैं नहीं आपको बताना चाहता, फोन पे पता चला है कि लोगों ने अपने वर्कर्स को जो बीमार हुए उनको घरों में भेज दिया है। मतलब इफ दैट इज दी वे दैट दे वांट टू डील विद दिस इशू, तो कैसे कुछ करेंगे कि मेरे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, अगर कोई बीमार होता है तो उसको देखभाल करने की वजह से कहते तुम गांव जाओ, गांव चले जाओ, अपने घर चले जाओ, और उधर जाके अगर खुदा ना खास्ता उसको ये वायरस है तो उधर इन्फेक्ट कर रहा है।
हमने तो यही कहा था कि जी आपने वो मतलब जब भी करेंगे वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लोगों की जानों से ज्यादा कोई और चीज कीमती नहीं है हमारी। इस वक्त आप अगर पुरानी स्टडीज देखें तो वो लोगों ने उन मुल्कों ने सरवाइव किया था जिन्होंने लोगों की जानें बचाई। अभी एग्जांपल देख लें, आज से 1-1.5 महीने पहले हम समझ रहे थे कि चाइना जो है उसकी इकॉनमी खत्म हो गई और पूरी दुनिया से जैसे वो आगे निकल रहा था वो खत्म हो गया, पीछे रह गया है। और अब बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है। चाइना ने अगर उसको जल्दी से काबू पा लिया तो इस वक्त मेरा ख्याल है चाइना विल कम आउट स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली देन अदर कंट्रीज बिकॉज दे कुड डू जो दूसरे मुल्क ना कर सके। तो ये देखना है कि चाइना ने उस वक्त सोचा था कि मेरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहे। आई डू नॉट थिंक सो। उन्होंने पूरे शहर बंद कर दिए। हमारे जो अपने शागिर्द थे उधर चाइना में, आपने उस जमाने में तो हमारी सबसे बड़ी वरी ये थी कि हम इनको वापस कैसे लाएं, और उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने सबको लॉकडाउन कर दिया। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद की और अब दे आर डूइंग अब हर चीज में वो आगे। ये सोच हमें रखनी चाहिए। इकोनॉमी पूरी दुनिया की इफेक्ट होगी। ये दुनिया इस वायरस के बाद इट विल नॉट बी द सेम वर्ल्ड एज इट वाज ऑन द 31st of December 2019। दुनिया बदल गई है और इस बदलती हुई दुनिया में हमने एडजस्ट करना है अपने आप को। ये अभी इस वक्त भी ये सोचेंगे अगर कि मेरी एक्सपोर्ट्स हर्ट होगी, हमारे बंदे लोग बचेंगे तो एक्सपोर्ट्स को बचाएंगे। आप सबसे पहले लोगों की जिंदगी का ख्याल करें। हम बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर सिंध, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं लोगों की ज़िंदगी बचाना इस वक्त उनकी तरजीह है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ शुरू हो गई थी। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी की तरफ से एक बयान सामने आया, वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगा, जिससे ये तासुर उभरा कि उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त लाशें दफनाई जा रही हैं, तो शायद कोरोना की जो हुकूमत नंबर बता रही है असल में नंबर उससे ज़्यादा तो नहीं है। फिर उनकी तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई। उन्होंने कहा कि जो मुश्तबा लोग हैं, जो मुश्तबा तादाद भी ज़ाहिर है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने बताया कि 14,000 से इस वक्त तजावुज़ कर गई है पाकिस्तान में मुश्तबा अफराद की तादाद। फैसल ईदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब बहुत शुक्रिया। आपने एक बयान दिया, फिर उसके बाद आपकी तरफ से उसकी क्लैरिफिकेशन भी आई। क्या ऐसा तासुर उभरा जैसे ऑफिशियली कम बताया जा रहा है, लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही हैं? आप बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे थे? अजीब, ये मसला ये था कि जो सस्पेक्टेड है ना, इनको काउंटिंग में नहीं लिया जा सकता। इनमें सिम्टम्स मौजूद हैं लेकिन टेस्ट चूंकि नहीं हुआ, लेट होने की मतलब टेस्ट जो है वो क्योंकि कैपेसिटी पाकिस्तान में कम है और बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे पेशेंट जो है वो टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस दौरान इंतज़ार के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी जो है वो अटैक की वजह से, तो हम उसको तस्वुर करते हैं कि ये क्योंकि सिस्टम्स मौजूद थे और ये कोरोना वायरस का पेशेंट था सस्पेक्टेड, तो इसलिए हम जो है ना इसको एज अ कोरोना वायरस का पेशेंट ही लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लेती। गवर्नमेंट जब तक टेस्ट नहीं हो जाता और सबूत नहीं आ जाता इन राइटिंग, तब तक जो है वो नहीं लेगी इसको। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे उनमें अलामात थी, वो सस्पेक्टेड केसेस थे, तो ये कितनी अमवात हुई होंगी अभी तक पाकिस्तान में जो सस्पेक्टेड केसेस की हुई हैं? देखिए, ये इस वक्त जो है वो कोई फिगर देना जो है ना वक्त कबल वक्त होगा और जो है मुनासिब भी नहीं ठहरेगा। बेहतर ये होगा कि जब हम अपने पास अब कुछ डेटा बनाना शुरू कर दें और लोग हमसे छुपाए ना कि ये कोरोना का नहीं है, क्योंकि वो खौफजदा थे कि इनकी गुस्ल नहीं होगी। लेकिन अब हमने ये हमें ट्रेनिंग मिल गई है, हम बिल्कुल जो है उनकी गौसल भी करेंगे। अगर वो उनको कब्रिस्तान में उनको अगर हमारे सर्द खाने में भी रखवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकेगा, कोई इशू नहीं होगा। और जौन से भी कब्रिस्तान में वो कहेंगे वहाँ पे हो जाएगी और इसकी नमाज़ जनाजा भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मतलब अब कम से कम इतना बता दीजिए कि ये तो कहा जा सकता है ना, क्योंकि लोगों में बेचैनी फैल जाती है कि ये पता नहीं कितनी अमवात हो रही हैं, कि ये कोरोना से पहले जो आमतौर पर आपके पास डेड बॉडीज़ आती थी गुस्ल के लिए, दफनाने के लिए, और कोरोना के बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है कि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ आपके पास आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है अभी की कोई सिचुएशन नहीं है, इस तरह की बिल्कुल कोई सिचुएशन नहीं है। और 2-4 दिन के अंदर ये वाज़ेह हो जाएगी। हम आपको जो है ना एग्जैक्ट डेटा दे सकेंगे, लिस्टें भी हम दे सकेंगे कि सस्पेक्टेड पेशेंट जो है हमारे पास कितने आए। जो हमारे पास नहीं आएंगे उसकी तो हम यकीनन नहीं देंगे, जो हमारे पास आएंगे हम उनकी जो है वो आपको लिस्ट शेयर भी कर सकेंगे, डेटा भी शेयर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है एक फैसल ईदी ने जब ये बयान दिया उस वक्त फैला था, उन्होंने कहा कि ऐसी अभी कोई बात नहीं है, कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ हमारे पास आ रही हैं, सस्पेक्टेड केसेस हैं जो उन्हें लग रहे थे, मगर अब
چاہے غسل دینے کی بات ہو یا تدفین کی بات ہو، اس کے لیے کھول دیا گیا ہے سب کچھ۔ ایک بے چینی یہاں سے پھیلی تھی، دوسرا ڈاکٹر عطاء الرحمان جو کہ چیئرمین ہے پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کی طرف سے جو بیان آیا کہ کیسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، جو کہ چیف مختلف ہیلتھ منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیلتھ منسٹر ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، سعید غنی صاحب ہوں، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کیسز کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ مگر ایک اور بات ان سے منسوخ کر کے چلائی گئی کہ پاکستان میں اس وقت شرح اموات اس لیے کم ہے یا اتنا کم ہو رہا ہے کیونکہ وائرس جو ہے اس کا اثر پاکستان میں کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ سے منسوخ کر کے بات چلائی گئی کہ دنیا کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ خطرناک ہے، وائرس کی نوعیت یہاں پر کم ہو گئی ہے، کیا بات ہے جو آپ سے منسوخ کر کے بات کی گئی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کا سیکوینس، اس کا جو سٹرکچر ہے یہ معلوم کیا ہے اور اس میں کچھ فرق آئے ہیں، جو کہ چائنا کا وائرس تھا اس کے مقابلے میں کچھ میوٹیشنز ہمیں دکھائی دیے ہیں، لیکن اس سے یہ کہنا کہ یہ اس سے کم ایگریسو ہے یا زیادہ ایگریسو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے ایگریسونیس کے اوپر تو کام ہی نہیں ہوا، اس کے سٹرکچر پہ کام ہوا ہے۔ اس کے اندر کے تقریباً 30,000 کے لگ بھگ نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں، اس کا ایک نیوکلیوٹائڈ کا پورا سیکوینس کیا گیا ہے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ میں کراچی یونیورسٹی میں، جو اتفاق سے میرے والد کے نام سے ہی قائم کیا گیا تھا، میری ڈونیشن سے۔ یہ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز جو یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے اس پورے خطے کا، اس کا ایک حصہ ہے، اور وہاں پہ یہ سیکوینسنگ ڈاکٹر اقبال چودھری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر اشتیاق جو ان کے ساتھ ہیں اور دوسرے، انہوں نے یہ سارا سیکوینسنگ کری ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس میں کچھ جگہوں پہ میوٹیشنز ہوئی ہیں، تو یہ فرق ہے اس میں، لیکن ایگریسونیس زیادہ ہے یا کم ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہاں پہ اموات کم ہو رہی ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں کا موسم تھوڑا گرم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں وائرس جو ہے اس کی اسٹرین میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اموات کم ہو رہی ہیں مغرب میں اور یورپ میں خاص طور پہ اس کے مقابلے میں۔ کیونکہ ظاہر مغرب میں زیادہ ہو رہی ہیں اور یورپ میں تو بہت زیادہ، اگر ہم مثال دیکھیں اٹلی کی اور اسپین کی تو بہت زیادہ ہے، جرمنی کا پھر ابھی 1% سے بھی کم ہے ڈیتھ ریشو۔ تو پاکستان، بھارت، اگر یہاں پر اموات کا ریشو کم ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیونٹی بہتر ہے، تو کیا جو ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ برطانیہ میں نہیں چلا وہ پاکستان میں اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی بہت ارلی ہے کیونکہ ٹیسٹ ہم نے زیادہ نہیں کیا، ٹیسٹ کٹس ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، تیاری وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی ارجنٹلی، اس لیے ابھی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہمیں ایکچولی صحیح نمبر آف، کیونکہ ٹیسٹنگ اتنی کم ہوئی ہے، کل پاکستان میں میرے خیال سے 20-25 ہزار سے ٹیسٹ زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے پچھلے 3 ہفتے میں، جبکہ اتنے ٹیسٹ ہمیں روزانہ کرنے چاہیے، لیکن کیونکہ ہاسپٹلز میں جو ریئل ٹائم PCR مشینز وغیرہ بہت کم ہیں یا نہیں ہیں بہت سے ہاسپٹلز میں، تو ہم یہ ٹیسٹ نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے ابھی تک ڈیٹا اتنا کم ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ یہاں سچویشن بہت بہتر ہے جو اس وقت مغرب کے ممالک میں جو حالات ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر کنٹرول رکھا ہم نے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو نہیں کر سکتے کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں جو روزانہ دیہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، ہمیں ایک حد تک کھلا رکھنا پڑے گا تاکہ ان لوگوں کی روزی کا بندوبست رہے، لیکن پارشل لاک ڈاؤن یا احتیاط پھر بھی ہمیں کرتے رہنی ہوگی جب تک کہ یہ پوری وبا ختم نہیں ہو جاتی۔ اور اس میں اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ میرے خیال سے کرٹیکل ہوں گے کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو شرح ہے بیماریوں کی اور اموات کی زیادہ آسانی سے شرح معلوم کی جا سکتی ہے، تو یہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور پھر پلیٹو کب پہنچتا ہے اور پھر کم ہونا کب شروع ہوتی ہے، اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ کس حد تک تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ اور کنٹرول رکھتے ہیں، آپس میں سوشل ڈسٹنسنگ رکھتے ہیں، صفائی رکھتے ہیں، اور جھمگڑا کے جمع نہیں ہوتے، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے جہاں چانسز ہوں ایک دوسرے سے وائرس کو لگنے کا۔ لیکن ایک بہت اہم ابتدا جو کی گئی ہے وہ ایگزسٹنگ ڈرگس کے اوپر ہمارا ٹاسک فورس نے کلینکل ٹرائلز شروع کر رہے ہیں لاہور میں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، جہاں پہ کچھ جو ایگزسٹنگ اینٹی ملیریل ڈرگس ہیں اور اینٹی وائرل ڈرگس ہیں، تو یہ اس پہ کلینکل ٹرائلز اسی ہفتے شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، ان کے اور ایک پوری ٹیم ہے جس میں یورپ کے بھی کچھ سائنسدان شامل ہیں، ان کی نگرانی میں یہ کلینکل ٹرائل شروع ہو رہے ہیں،
तो ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इसको रोकने के लिए एज अ प्रोफिलैक्टिक या फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं, और वैक्सीन्स और नए ड्रग्स को तो भूल जाना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि वैक्सीन अगर कोई डेवलप भी हो जाती है तो उसको कोई 1.5 साल लगेगा मार्केट में आने में, और जब तक ये पूरी वबा जो है ये आगे गुजर चुकी होगी। और नया ड्रग जो है अगर आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके लिए कई अरब डॉलर और कम से कम 10-15 साल की रिसर्च चाहिए होती है इससे पहले कि वो आए। तो हमें एग्जिस्टिंग ड्रग्स के ऊपर या फिर कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ के साथ सफाई, और फिर एग्जिस्टिंग ड्रग्स में बहुत सी कुछ जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हैं जो चाइना में इस्तेमाल हो रही हैं फॉर कोरोना वायरस, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अप्रूव की हैं, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया सब, क्योंकि आवाम में बड़ी बेचैनी है कि ठीक है केसेस पता नहीं कितने हैं नहीं पता, मगर अमवात की शरह उतनी ही है जितनी बताई जा रही है। पंजाब की हद तक भी आप कह सकती हैं कि जितनी अमवात की शरह बताई जा रही है उतनी है, या ये ज़्यादा हो सकती है? वो वजह यह है कि देखिए अभी तक हमारे पास जो अमवात हैं सामने आई हैं वो 9 हैं जो कंफर्म्ड हैं। 4 ऐसे मरीज़ थे जिनके बारे में हमें शक था, तो बाकायदा उनके टेस्ट लिए गए और उनको उस वक्त क्लियर किया गया जब उनकी रिपोर्ट आ गई और पता चला कि वो नेगेटिव है। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो ज़रा छुपानी बहुत मुश्किल होगी। अब किसी भी हस्पताल में एक मरीज़ सांस की तकलीफ़ से आए या खुदा न खास्ता कोरोना की जो हमारी वो टर्मिनल स्टेट है उसके अंदर अगर आए, तो मेरा ख्याल है अब तक तो सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इसके बारे में इतला दी जाती है। तो आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि मे बी कोई 2-4 डेथ्स ऐसी हो गई होंगी जो रिपोर्ट ना हुई हों। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि एवरी डेथ विच इज़ बीइंग रिपोर्टेड उसकी तशख़ीस हम ज़रूर कर लें अगर वो शक वाली बात हो। अब इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास पंजाब के अंदर 639 हो गए हैं, और कोई तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त हम कोई 14,573 टेस्ट कर चुके हैं, और आज के सिलसिले में भी मेरा ख्याल है 1,000 टेस्टों की शाम तक मज़ीद और रिज़ल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें भी अमवात की शरह ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में भी इस खत्ते में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। इटली में तो तकरीबन 11% के पास है, स्पेन में 8% है, जर्मनी में 0.75% है। उसकी वजूहत क्या है वो हम आवाम के सामने रख देंगे। आप बतौर डॉक्टर आपको क्या वजह समझ में आई है? इम्यूनिटी बेहतर है यहाँ, या कोई और वजूहत हैं, या बहुत जल्दी है ये बात क्लेम करना कि बहुत ज़्यादा कम रेशो है? क्या वजह है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई सिर्फ हमारे ही पाकिस्तान के उसमें नहीं, इस पूरे खत्ते के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में भी कंपैरेटिवली कम डेथ्स और कम नंबर हैं। बांग्लादेश के अंदर भी तकरीबन यही हालात हैं। श्रीलंका में ये लगता है कि इस इलाके के अंदर 2-3 हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस ही बंदा दे सकता है, थियरीज दे सकता है। एक तो ये कि मलेरियल बेल्ट है या मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो मलेरियल बेल्ट में क्या पता किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी इस तरह की आ गई हो जिसकी वजह से कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं हम। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होते रहते हैं, तो शायद एक क़ुव्वत मदाफ़ियत जो हमारी अपनी इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। और जो अभी अगेन मैं आई कोट द लास्ट प्रोग्राम दैट आई वाज सिटिंग इन, जिस पे वो तारिक रहमान साहब फरमा रहे थे कि ये जो प्रॉबली वो कल तक ये इसकी वो देंगे कि ये जो इस वक्त वायरस हमारे में है इसमें थोड़ी सी म्यूटेशन हुई है, और अगर ये म्यूटेटेड वायरस है तो मे बी इसकी विरुलेंस कंपेरेटिवली शायद कम हो। बट ऑल ऑफ दीज आर थियरीज विच आर कमिंग फॉरवर्ड, और ये तो पता तब चलेगा अब जैसे जैसे हम अपनी टेस्ट की नंबर जो हैं वो एक्सपैंड करेंगे तो कुछ आइडिया बेहतर होगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर सही पोजीशन वाज़ेह होगी। डॉक्टर साहब इस पर बाकायदा अमल दरामद के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि रायविड का इज्तिमा हो गया, जिम्मेदारी थी कि वो उसको समझाया जाता जब सऊदी अरब में उम्रा तक नहीं हो रहा, मगर इज्तिमा हुआ, उसके बाद वहाँ से जमातें भी निकली जो सिंध में आई। हैदराबाद में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो तबलीगी हैं। इसके अलावा पंजाब में भी अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप क्वारंटीन कर रहे हैं। ये जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में भी, आप समझते हैं कि ये सब कंट्रोल में है या फिर बहुत ज़्यादा इलाकों में जो मुख्तलिफ जमातें गई हैं तबलीग की वो फैल गया है?
جی جی بالکل. وجہ یہ ہے کہ یہ تو ان سے بہت زیادہ اصرار کرنے کے باوجود اگر نہیں انہوں نے کیا اور پھر کم کر کے, اور ابھی جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا گروپ ہے جن کو ہم نے موو کیا ہے ٹو کالا شاہ کاکو, اس کے اندر جو پہلا 50 کا گروپ تھا اس کے اندر 27 لوگ پازیٹیو آ گئے, تو جو کہ بڑی تشویشناک بات تھی. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ تقریباً اگر 50% انفیکٹڈ ہیں, لیکن کیونکہ ان کو کوارنٹین میں اب رکھ لیا اور ان کو موو کر دیا ان ون ایریا, اور اسی طریقے سے راولپنڈی میں بھی کوارنٹین بنا گئی ہے. تو میرا خیال ہے جو لوگ تبلیغی اجتماع میں آئے تھے ان کو پوری کوشش اس وقت کرنی چاہیے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنی لوکل اتھارٹیز کو بھی انفارم کریں, اس وجہ سے کہ اگر آپ اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف دیں گے تو یہ اس سے بڑی تکلیف دہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ سب کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا ٹیسٹ ضرور کیا جائے. ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ہیں ان سب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ کل تک کچھ نہ کچھ نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور آپ کے سامنے ضرور ہم رکھ دیں گے. ڈاکٹر صاحب, اب ذرا لاک ڈاؤن آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا, اب آپ چاہتی ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن ہو اگلے مہینے کے مڈ تک یا آگے تک, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں کھولی جائیں, جو چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں انڈسٹری اس کو ریگولیٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کھولا جائے؟ اسینشلز تو ساری کھلی ہوئی ہیں مگر ایکسپورٹ انڈسٹری دوسری انڈسٹریز کو آہستہ آہستہ کھولا جائے. میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, یہ ڈیسیجن جو ہے یہ تو جو آپ کے پاس انالیسز آئیں گی, سائنٹیفک انالیسز ان دی نیکسٹ 1 ویک, ابھی کہنا بہت مشکل ہے. آج دیکھیے 30 تاریخ ہے, ابھی ہمارے پاس 5 دن اور ہیں. 5 دن کے اندر جو پکچر ڈیولپ ہوگی اس پکچر کے مطابق ویل بی ان اے پوزیشن ٹو سی کہ مزید اگر لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنا ہے تو کب تک کنٹینیو کرنا ہے, اگر اس کو مائلڈ کرنا ہے تو کس حد تک مائلڈ کرنا ہے, کیا اس کو کنفائن کرنا ہے ٹو سرٹن ایریاز جن کو ہم ریڈ زونز ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیونکہ اٹس اے ریپڈلی ایوالونگ سچویشن, تو آپ آج کے دن کل کا کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میرے لیے اس وقت کہنا مشکل ہے, لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ 15 اپریل تک بہت حد تک سچویشن کلیئر ہو جائے گی پاکستان کے اندر کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. میرا خیال لاک ڈاؤن کا ہمیں فائدہ ضرور ہوا ہے کیونکہ ہم بہت حد تک کیسز جو ہیں ان کو کم کر دیا ہے, اور اگر ہمارے پاس اتنے کیسز آتے رہیں جن کو ہم سنبھال سکیں ہسپتال میں تو وہ بہت بہتر رہے گا. اور ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر کرونا اسپیسیفک ہاسپٹلز ڈکلیئر ہو جائیں کچھ ہاسپٹلز, تاکہ باقی ہسپتال جو ہیں وہ اپنا باقی کام تو جاری رکھیں. ہم لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم 3 ہسپتال جو ان کو مخصوص کر رہے ہیں اور کل اس بات کا اعلان بھی کر دیں گے, اور باقی ہسپتال جو ہیں وہ لوگوں کو کہیں گے آپ ان 4 ہسپتالوں میں نہ جائیے. میو ہسپتال, PKLI اور یہ جو کل بہت بڑا ٹرائیج جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, کل سے شروع ہو جائے گا ایکسپو میں. تو ہم لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے صرف انہی ہسپتالوں میں جائیے, اور باقی ہسپتالوں میں اگر کھانسی زکام یا آپ کو شک ہے کہ کورونا کے آپ کو سمٹم ہے تو ان ہسپتالوں میں جائیں, باقی 4 ہسپتالوں میں مت جائیے, تاکہ باقی جو مریض آتے ہیں ایمرجنسیز آتی ہیں وہ یہ باقی 4 ہسپتال جیسے کہ سروسز ہسپتال ہے, گنگا رام ہسپتال ہے, جنا ہے, لاہور جنرل ہاسپٹل یہ مینیج کر سکے. اسی طرح پنڈی کے اندر ہم نے یورولوجی کے اندر سب کچھ کنسنٹریٹ کر دیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم نمبر آف پیشنٹس بھی ادھر ہوں اور وہیں ٹرائیج بنے. اور اسی طرح ملتان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مظفر گڑھ کا جو طیبہ دکان ہسپتال ہے اس کو مخصوص کر دیا ہے, بھاولپور میں بھی مخصوص کر دیا ہے, فیصل آباد میں بھی مخصوص کر دیا. کوشش کی جا رہی ہے کہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی سہولت ضرور ہو جو صرف مخصوص ہو کرونا وائرس کے لیے, ورنہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا باقی اسپتال بھی چلانا, کیونکہ یہ پھر اسپریڈ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ, وی ورکنگ آن دوز لائنز. بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, وہ کہہ رہی ہیں لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا ہے مگر 15 تاریخ تک صحیح صورتحال پتہ چلے گی. وزیر اعظم ایک طرف لاک ڈاؤن کو کرفیو بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف انہی کی پنجاب حکومت وہی کرتی ہے جو سندھ حکومت کرتی ہے, لاک ڈاؤن کے فوائد بھی بتاتی ہے, انہی کی خیبر پختونخوا حکومت بھی یہی بات کرتی ہے. ساتھ ہی دنیا بھر میں اس وقت یہ وائرس 7 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے اور 6 سے 7 لاکھ کا نمبر ایک دن سے بھی کم کے عرصے میں ہوا, یعنی 1 لاکھ کی تعداد میں اضافہ دنیا بھر میں ایک دن سے بھی کم کے عرصے میں ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فائنلی نمبر دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 22 لاکھ لوگوں کے مرنے کی بات ہو رہی تھی, مگر اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سے 2 لاکھ لوگ یا 1 لاکھ تک لوگ مریں گے. تو وہ بات تو بری ہوگی مگر وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کی ایک اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ 20 سے 22 لاکھ لوگ مر سکتے تھے. So you're talking about 2.2 million deaths,
2.2 million people from this. बात तो 20 से 22 लाख लोगों के मरने की जा रही है, मगर अगर इसे हम 1 लाख तक ले आएं, हालांकि 1 लाख लोगों का मरना भी भयानक बात है, मगर अगर हम इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1 लाख से 2 लाख के दरमियान ले आएं तो इसका मतलब होगा कि हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। 2.2 up to 2.2 million deaths and maybe even beyond that. I'm feeling very good about what we did last week. You're going to have massive depression, meaning mental depression. You're going to have depression in लोग बहुत ज़्यादा जहनी डिप्रेशन का शिकार होंगे, मुआशी डिप्रेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा लोग खुदकुशी करेंगे और सबसे ज़्यादा ये कि लोग मंशियात के आदी हो जाएंगे। आप देखेंगे कि लोग इस तरह मंशियात के आदी हो रहे हैं जो तारीख़ में पहले कभी नहीं देखा गया, और लोग मंशियात के आदी होने से हर जगह मरते हुए नज़र आएंगे। You will see drugs being used like nobody's ever used them before, and people are going to be dying all over the place from drug addiction. Hopefully we're not going to have that, because hopefully मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे मुल्क में 22 लाख लोगों की अमवात नहीं होंगी और उम्मीद है कि मुल्क की मईशत का पहिया दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों का सबसे बड़ा मरकज़ है, जहां 1,42,700 से ज़ायद कोरोना के मरीज हैं। 2490 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरीजों की तादाद और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और आम बात यह है कि अमेरिका उन ममालिक में शामिल है जहाँ इस वबा के खिलाफ इब्तिदा में संजीदगी नहीं दिखाई गई और बरवक्त फैसले नहीं किए गए, जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। सेहत और इलाज की मिसाली सहूलतें होने के बावजूद इस वबा का फैलाव नहीं रोका जा सका है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इन्फेक्शन ने पीक नहीं किया है। अभी तक तादाद मुसलसल बढ़ रही है, अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं, जबकि इसके मुकाबले में जिन ममालिक ने इस वबा की रोकथाम के लिए फौरी और मौसर इंतजाम किए, वहाँ इब्तिदा में नुकसान तो उठाना पड़ा, मगर वो ममालिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से चीन के मॉडल को दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जहां से कोरोना वायरस का फैलाव शुरू हुआ था और वहीं पर सबसे पहले काबू भी पाया गया। इस हवाले से एक और मिसाल सिंगापुर की भी है, जो इब्तिदा में ही कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल था, मगर वहाँ उठाए गए फौरी इक़दाम की वजह से इस वबा को फैलने से रोक दिया गया। ये मौसर इक़दाम क्या थे? इस हवाले से सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने CNN पर फरीद ज़करिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमने कोरोना वायरस को बहुत संजीदा लिया था, बहुत मेहनत की थी, कोरोना के मुतासरीन का पता चलाने के लिए ऐप भी बनाई। मैं अभी तक ये दावा तो नहीं करूंगा कि हम कोरोना के खिलाफ कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अभी हम इस वबा से जंग करने के दरमियान में हैं। हमने शुरू से बहुत मेहनत की और इस वायरस को बहुत संजीदा लिया। जो कुछ चीन में वुहान में हुआ, हमने उसके फ़ौरन बाद अपने लोगों को इससे निमटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम 17 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब सार्स वायरस ने हमला किया था। जैसे ही कोरोना के केसेस सामने आए, हमने फौरी तौर पर इसके टेस्ट और इलाज को मुफ्त कर दिया। मुतासरा लोगों से जो लोग मिले, हमने उनको फ़ौरन ट्रेस किया, उनके टेस्ट किए और वायरस के फैलने के अमल को रोक दिया। हमने पूरी मेहनत करके अपने आवाम को समझाया कि हम इस वायरस से उनके ताउन से ही निमट सकते हैं और उन्हें इसके लिए क्या इक़दाम करने हैं, जैसे कि एक दूसरे से फासला रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो दफ्तर ना जाना और दूसरे लोगों से ना मिलना। इस पूरी मेहनत के साथ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने वायरस के फैलाव को रोक दिया है, मगर मैं इस खाम ख्याली का शिकार नहीं हूँ कि हम इस वायरस से जंग जीत गए हैं। जो भी मुतासिर हुआ, हमने इंटरव्यूज़ किए, वो किस किस से मिले, उनको ट्रेस किया। हमने एक ऐप भी बनाई है जो शहरियों के मोबाइल में होती है, जिससे ये पता चलता है कि किस किस को वायरस है और कौन मुतासिरा शख्स से राब्ते में आया। सिंगापुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोक दिया है। इस वक्त सिंगापुर में कोरोना के मरीजों की तादाद 879 है, जबकि 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके मुकाबले में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है। इटली और स्पेन में अमवात की शरह ज़्यादा है। सिंगापुर कामयाब हो गया है। इटली में तो कोरोना से शरह अमवात 11%, मगर जर्मनी में 0.72% हैं। ये 0.72% की वजह क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही PKLI में कितने अच्छे इंतजाम किए गए हैं, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं लाहौर में, वो भी आपको अंदर का हाल दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।